Hello student, chapter Water Surrounding the Earth Solution, chapter 5. At first, tick the correct option. In this video, we cover all the exercise of this chapter. Okay. Now, first question is the water cycle is. The water cycle is the continuous movement of water. Right answer is continuous movement of water. Question number 2. The three stages of water are. The three stages of water are states of water are solid, liquid, and gas. Question number 4. What turned water on the earth into vapors in the water cycle? तो वाटर वेपर्स बनने में कौन हेल्प करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें द सन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन क्लाउड्स इज गेट टू हैवी टू होल्ड वाटर, तो क्या होगा? तो बारिश होगा, यही होगा ना, और क्या होगा? तो ऑप्शन बी, द वाटर फॉल ऑन द अर्थ. विच इज़ द ओनली वार्म करेंट फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है वो वार्म करेंट है, गर्म धारा है, गर्म जल धारा है? कुरोशियो. क्वेश्चन एंड फिल द ब्लैंक्स. ये फिल द ब्लैंक्स में आपको जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो ब्लैंक भाग है आपका. द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. व्हेन द लेवल ऑफ ओशन वाटर राइज इट इज़ अ डैश टाइड, हाई टाइड. वाटर लेवल ओशन का जब हाई होता है तो हाई टाइड के समय ऊंची लहरें आती हैं. कोलकाता पोर्ट इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट्स. कोलकाता पोर्ट जो है वो एग्जाम्पल है टाइडल पोर्ट्स का. द गल्फ स्ट्रीम्स टेक इट्स नेम फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको. Humboldt current is a cool current on the west coast of साउथ अमेरिका. Humboldt current जो है वो गर्म जलधारा है. ठीक है. Give a technical term for each of the following statement. The process in which water is converted to water vapor through heat of the sun. तो इवेपोरेशन के समय कन्वर्ट होता है वाटर. The continuous circulation of water in the three sphere of the earth. Water cycle. A movement in the ocean in which water particles move up and down. Wave. जलधाराओं के कारण. It is the purest form of water. Rainwater is the purest form of water. Periodic rise and fall is the level of the ocean water is called tide. ये आपका टाइड की डेफिनेशन में भी काम करेगा. What is tide? Answer the following question. On what factor does the height of a wave depend? कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो टाइड आता है उसकी हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? द हाइट ऑफ द वेव डिपेंड ऑन द स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द विंड. अब ये विंड के स्पीड्स के ऊपर, इसके स्ट्रेंथ के ऊपर और इसके ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करती है. देन क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन एन ओशन करेंट. ओशन करेंट को डिफाइन करना है. ओशन करेंट आर द रिवर इन द सी, द बिग स्ट्रीम ऑफ वाटर रनिंग कॉन्टिन्यूसली एंड रेगुलरली इन अ डेफिनिट डायरेक्शन ऑन द surface or subsurface of ocean is called ocean current. There are two types of ocean current, hot current and cold current. दो तरह की ocean currents होती है. कौन कौन सी? hot और cold ocean current होती है. Then question number 3. How are tide caused? Tide होने का क्या कारण है? Tide are caused by the attraction extended by the moon and the sun on the surface of the water, but the role of the moon is causing tide is much more significant. Water on the side of the earth nearest the moon are attracted more strongly than the land. Question number 4 and 5. Name the important components of the water cycle. कौन कौन से components जो important components हैं water cycle में? तो important components of the water cycle are sun और water. Name 3 valuable resources which are found in abundance in ocean. Copper, nickel, cobalt are the valuable resources found in the ocean. Okay. Then answer the following question. How are tide useful to us? Tide किस तरह से उपयोगी है हमारे लिए? Tidal energy is harnessed to generate electricity in the coastal areas. सबसे पहले इस टाइडल एनर्जी से
कोस्टल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ट्राइडल एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाउ आर ओशन बेनिफिशियल टू अस इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसे इम्पॉर्टेंट है ओशन? The ocean facilitates the countries and region to trade with one another as it acts as major source of transportation. सबसे पहले तो ये मेजर सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का, एक देश से दूसरी जगह देशों में जाने के लिए गुड्स को। गुड्स कैन बी मूव इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बाय शिप एंड ट्रांसपोर्टेशन इज चीपर देन एनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कोई मोड जो ट्रांसपोर्ट का है उसके मोड से ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। The marine environment provide marine and plant life in abundance for food and trade. The ocean or as thus are a valuable source of food. Some of the valuable minerals are also found in the ocean. Floor like minerals, oil, gold, platinum, nickel, copper, cobalt, etc. Several countries are tapping minerals oil as a source of energy इन अ बिग वे। ओके, तो ये आपका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अ साइकिल इज समथिंग दैट ऑकर ओवर एंड ओवर अगेन। वाटर continuously move from the earth to the air and back again. The constant circulation of water is known as water cycle। और इसके बाद हम इसका वाटर साइकिल का डायग्राम ये ड्रॉ कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। तो और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर इस पैराग्राफ आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, द वाटर इज अ सी, ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम इवेपोरेट बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन। प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। द वाटर वेपर राइज अप, द एयर हायर अप इन द एटमोसफियर इज कूलर। This cools the water vapor and it condenses to form tiny droplet of water on small dust particle. These drops of water together from clouds. As the cloud get cool further, the water drops become bigger. When they become too heavy, they fall on the earth as a rain. The rainwater enter the sea, ocean, river, lake, pond and stream, and then evaporation again and again. This process are continuously, ये प्रोसेस चलते रहता है और वाटर साइकिल का काम चलते रहता है। दस द वाटर साइकिल इन द नेचर गोज ऑन, और ये नेचर में कार्य प्रक्रिया चलते रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन 3 इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट। ओशन करेंट्स के 3 इफेक्ट्स बताने हैं। तो फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स आर, ओशन करेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द climate of coastal region. Warm current raise the temperature, while on the other hand, the cold current lower the temperature. Because of warm current, the harbors in the cold countries remain open all over the year around. अब क्या कोल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ रही है वहाँ पे क्या होता है, हार्बर जो बंदरगाह हैं वो हरदम शिप के लिए खुले रहेंगे क्योंकि वो बर्फ़ नहीं जमेगी अगर कोल्ड करंट है तो। देन क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट 4 वे टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय डेवस्टेशन ड्यू टू सुनामी। गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs और एंड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, business organizations, shopkeeper, schools and colleges provide relief to the victims by donating money, clothes, medicine, bedding tents, etc. Media play an important role is mobilizing public help for the victim by donating money. तो क्या होता है कि सजेस्ट 4 वे टू हेल्प पीपल अफेक्ट बाय डेवस्टेशन ड्यू टू सुनामी। तो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, वेलफेयर एसोसिएशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शॉपकीपर्स, स्कूल्स, कॉलेज से डोनेशन जाता है। लोग क्लॉथ्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, बेडिंग्स देते हैं, टेंट्स देते हैं, ठीक है। और मीडिया भी इसमें बहुत ही हेल्प करता है लोगों को अवेयर करने के लिए और साथ में ये डोनेशन इकट्ठा करने के लिए। देन एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट दिस। ओके।